औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बेग और इस वक्त आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल टीवी चैनल और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का प्रोग्राम जो है वो जैसा कि दूसरे प्रोग्राम भी मैं कहती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। सेल्फ केयर किसे कहते हैं? एज मेगन सेड, ईटिंग हेल्थी, एक्सरसाइजिंग, sharing your passion with the world and living plentifully. That is true self-care. That is the definition that I read from Megan's article. And today I'm very excited to introduce my guest, Faiza Alvi. And I will ask you to welcome our guest, Faiza Alvi. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam, Nosheen. Thank you so much for having me over at your program. You're doing such a wonderful job connecting people and sending awareness in different areas of life. So thank you so much for having me today. My pleasure. This is my pleasure to have you at Lifestyle TV channel today. And I really want to start with the introduction. Faiza Alvi was born in Lahore, Pakistan, raised in Hong Kong, Portuguese, Chinese mom side and Pakistani dad side. जी, तो जी. फायजा अगर आप इसी से स्टार्ट करें कि आपका जो है आपका ददयाल और ननियाल आपने कहाँ उनसे कैसे क्या सीखा? उर्दू भी माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है और मॉम साइड से लेट्स सी कि आपकी वो कौन सी लैंग्वेज आप बोलती हैं? So, of course, Urdu is the main language, I would say, जहाँ पे born हुए और जिसको, of course, father side से ज़्यादा influence आता है, आपको पता है, especially in our culture. So, Nana Abu was also Indian. So he was in British Army and he was stationed in Hong Kong जब वो मेरी नानी को मिले, and my nanny was actually from Macau. Macau is a very small city near Hong Kong. So wahan se isliye, so we speak Urdu, Cantonese, English is, English and Urdu is the baseline, I would say, and then Cantonese here and there, but I'm not fluent in Cantonese. Yeah. Yeah. And came from a family of medical doctors and always wanted to become a teacher as a kid. So why did you change? Like you didn't get the influence or you had the on other your own motivation? So I think being from a family of doctors, I do have that heart jahan pe, we feel okay, community work, helping others, making a difference. But I didn't want it to be a doctor myself because Abu ko maine dekha hai. My chachu is a neurologist here in North Carolina, and the Dada Abu was, I didn't see my Dada Abu, but I feel like, the pressure jo hota hai, I wanted more like a simple lifestyle, jahan pe, but at times, हम लोग कई दफा projection करते हैं कि we want simpler things, but life throw us with, more. So alhamdulillah, but yeah, I wanted to, I think teachers से हम लोग भी inspire होते हैं जब हम लोग छोटे होते हैं. That's true. तो हमारे teachers हमारी एक वो ideal and role model बनते हैं. So that's where I began my career as a teacher in Hong Kong. Mashallah, in Hong Kong. So you taught ESL to preschoolers in Hong Kong. Yes. How was your experience in teaching there? It was wonderful. It was wonderful. Hong Kong is like, it's a business hub, I would say. So wahan pe English is not like, jaisa Pakistan mein, English is an official language. Hong Kong, it's not like that, but wahan pe bahut emphasize hai English learning ka chote bachon se. So, teaching English as a secondary language was just an honor roll. And I love children, so I enjoyed it very much. I had more energy that time to, run around and, be with kids. I don't think so I can do that anymore. But you still have energy, mashallah. I can see that. Alhamdulillah, I'm very blessed. Alhamdulillah. And okay, so from there got into real estate in 2009 after economic crash and losing her own house in foreclosure with the thought of helping people making the right decision when it comes to their most important investment, their home. That is true. Jay. So that was a shift. I would say another shift at that time. क्योंकि 2005 के end में December 2005 में मैं अमेरिका आई थी.
So of course शादी के बाद. So you know, of course we got our home and everything was right, but I felt कि जब हम लोगों ने घर लिया था ना नौशीन, so there was no guidance. बस यहाँ sign कर दें everywhere. That was the thing, and I was learning. जब हम market crash हुई है, तो it was not that my husband at that time, you know, my ex-husband, कि उनकी job की कोई ऐसी, but it was just about the loan. So I was going to college for my, you know, my degree, my bachelor's in early childhood education, जिसमें मेरी associate भी है from Hong Kong. And but that life shift threw me off in a way कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग अपना घर lose कर दें, you know? It was a big deal. So that got me into real estate कि कोई और वो वाला decision wrong ना करे, you know, when it comes to buying your home, you need to know कि आप कहाँ पे sign कर रहे हैं, आपका loan क्या है, आप किस तरह घर ले रहे हैं, आपकी affordability क्या है. So alhamdulillah, for the 11 years that I'm in business, most of my business is referral based, and alhamdulillah, I'm very, very blessed in that round. This is a big decision of buying a house, और उसमें जो है जिस तरीके से गाइड करते हैं रियल एस्टेट एजेंट, तो ये बात है, वो हर चीज जो भी कोई जॉब होती है, इफ यू आर नॉट डूइंग फ्रॉम हार्ट, यू कैन टेल. तो आपका तो जो है पैशन नजर आता है इसके अंदर लोगों के लिए कि अच्छा स्वीट होम जहाँ पे रहना है तो वो परफेक्ट होना चाहिए. I think my passion comes from where helping people, and I think real estate जो था वो और है, it's just a phase of it कि where you know, I feel empowerment where I'm helping people make the right decision. चाहे you know वो घर से हो, चाहे वो teaching में था पहले, you know, shaping the kids from, you know, from the get go. And shaping their mind, or इसी तरह I think घर is like, it's the baseline of either it can make you or break you, you know, buying a home. Last year जो है 2018 में हम भी एक घर देख रहे थे. Oh my God, it's not easy job. It's stressful, yeah. Oh, it is stressful. सही कहा. It's not an easy job. कोई But ऐसा, if you have the right people around you who can you know, hold your hand, और आपको guide कर सकें कि you know where you need to make what decision, I think वो जो journey होती है ना, वो easy हो जाती है. It's overwhelming and stressful, लेकिन I think अगर आपका agent, you know, I'm sure you had a wonderful agent. So, and there's so many great agents out there जो करते हैं, and I think they're doing service to their clients. Absolutely. सही. अच्छा, आजकल मार्केट का आपसे पूछेंगे maybe later on that how is the market going for sellers or buyers, but this is other separate topic. Went through a car accident in end of 2017, which followed by a major life shift of going through separation and divorce. तो उस वक्त क्या हुआ था, क्या कार एक्सीडेंट कैसा, उसके बारे में बताएं फायजा. So I would say, Nosheen, I think car accident was a phase of life, jo I think for many years back, when I reflect back, वो ये था कि, and that's what we are talking today, कि जो mindset है इंसान का, right? We're coming to it. I think I was asking for guidance or help. जैसा इंसान दुआ मांगते हैं, for instance, हम लोग या अल्लाह से बात करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं. I think जो divorce and separation मेरी life में रही है, that accident was just an awakening. It was an awakening ke, you know, where I see myself there on, and where I see myself into the future ke बहुत सारी चीजें culturally I would say कि हम लोग accept करते रहते हैं, you know, and I'm not saying कि only for married people. I would say it could be career, it could be health, it could be, you know, like as a whole. तो उसमें ये था कि जब मेरा accident हुआ ना, तो I just you know, started questioning. I was like, I'm always, you know, full of energy. I'm like, I'm a doer. मैं जाऊंगी करूंगी, and I was always running. I was like that hamster in the ring. यार वो काम कर रहे हैं, family को भी संभाल रहे हैं, entertain भी कर रहे हैं, friends, family, you know. तो I think वो जो then I took a step back and looked at my life. कि मैं कहाँ हूँ, and alhamdulillah, me and my ex-husband, we were, you know, very blessed, successful in our own careers both. लेकिन you know that alignment, I think जब मैं शादी करके यहाँ पे first आई हूँ ना 2005 में,
The अच्छा, first self year fight. ही मुझे ये feeling, ये समझ आ गया था कि this is not the right relationship for me, या this is not the right marriage for me. लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग सोचते हैं how it's going to impact हमारी family को, क्या लगेगा, image को क्या हाँ, होगा. That stigma in our culture, especially in our culture, I think वो globally एक है, थोड़ा सा pressure होता है हर इंसान को. And then फिर हम डरते हैं कि आगे क्या होगा. So we start accepting. In my case, I was not accepting it, but I was like, I will make it work. I will do this. तो ये हो जाएगा. अगर money was an issue, तो चलो ठीक है, I'll work harder, a little bit more harder, and then make it work. अगर कोई और चीज़ है, so I think when accident happened, I just got tired. I was like, मैं एक इंसान हूँ, and how much I can give to a relationship, to a life, And then I started asking help. So I think वहाँ से हुआ, and then I think ego also comes in. It could be ego in a man. It could be an ego in a woman. और मैं ये नहीं कहती कि it was. I'm not gonna throw it on him or anyone. It's just realizing कि आप कहाँ पे हैं life में and where you want to go, or accepting. अगर I think self care से आपने शुरू किया है, and I think हम लोग I think culturally हमें ये ज़्यादा pressure होता है कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स का पहले ख्याल करते हैं, बहन भाइयों का पहले ख्याल करते हैं, फैमिली वालों का पहले ख्याल करते हैं, और अपने आप को एक छोटे से डिब्बे में एंड में रख देते हैं. So I think that is a perfect example on me, that I was putting myself in a smaller box on a corner all the time. And then that's what I shifted in the last 3 years. और हमारी बहुत सी खवातीन जो है वो यही एग्जाम्पल आपने जो दी है सेल्फ केयर की, तो वो एक छोटा सा ही अपना हिस्सा जो है वो बना के रखती हैं. हाँ जी, मोस्टली. जी. और यही हम लोगों को आज जो है, आप उसको मेरे ख्याल में वो डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि जो एम्पावर्ड सेल्फ केयर होती है, डिस्ट्रक्टिव सेल्फ केयर होती है, कि उसमें क्या फर्क है. जैसे हम लोग एम्पावर्ड सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं कि आपने कैसे लर्न करती गई, अपनी जिंदगी में चेंजेस लेकर आती गई, अपने अंदर जो है वो आपको पता है कि हाँ मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, वो आपने उसको जाना, उसको समझा. Yes, and I'm a firm believer, I'm a big believer of this, कि even if you're ending relationships, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि तनाव नहीं होना चाहिए जब आप relationship. And alhamdulillah मेरे family वाले and my friends, they were surprised कि what, divorce, इनका we never saw them fighting, और इनका कुछ ऐसा नहीं. I think ये होता है कि आप ये realize करें जब आप कोई भी चीज़ छोड़ें, चाहे वो जॉब छोड़ें, चाहे आप कोई भी स्विच करें अपने रिलेशनशिप्स में भी, फ्रेंडशिप भी हो सकती है. सो लीव इट ऑन अ गुड नोट. ऐसा नहीं कि उसको chaotic बना के अपनी लाइफ को ज़्यादा. एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह that's why I feel more empowered के and I'm able to talk about this very sensitive stuff जो it's not like ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले की बात है. It's pretty recent. लेकिन आई थिंक उसको अंडरस्टैंड करना और एक्सेप्टेंस जो है ना, आई थिंक हमें मोर एक्सेप्टेंस की जरूरत है इन आवरसेल्व्स. अच्छा, ये तो बहुत मसला हो जाता है यहाँ पर ही. इस तरह ये चीजें देखिए कि अगर डिवोर्स की बात आती है तो रिलेशनशिप जो है वो इस तरीके से, जैसे आपने कहा कि उनको इस तरीके से रखें कि जैसे आपके बच्चियां भी हैं माशाल्लाह, 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह. यस, आई थिंक वो अपने अब्बू से भी मिलने जाती होंगी, उनसे भी उन्होंने ताल्लुक रखा होगा. बिल्कुल. it's 50% custody. और जब हम लोगों ने ये डिसीजन लिया and I think I'm blessed in that round too, कि उन्होंने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया इन अ वे कि हम लोगों ने एक सिविलाइज तरीके से पार्ट वेज किया. a lot of people come across के कोई मेजर मसला होगा, but I feel like कि कई दफ़ा ऐसा होता है. For me it was like मेरी हेल्थ डिटेरिएट हो रही थी. I gained stress की वजह से, I gained tremendous amount of weight, which I'm still on that journey to losing weight. I'm not quite at my goal weight, and then mentally and physically अपने आप को transform. Sorry, you were about to say something. नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो जो मैंने पिक्चर देखी थी आपकी, माशाल्लाह, आपने how much did you lose? Right now, about 65 kgs. Sorry, 65 pounds, not kgs. Pounds. Wow, that's amazing. That's a big, I mean, the achievement that you had. अब मैं तो समझ नहीं सकती 65 पाउंड्स के एकदम से ऐसे इतना. I'm pretty sure कि आपने इसके लिए बहुत वर्क हार्ड किया होगा.
जी, and I think Nosheen, it's about के it's also again it comes to mindset. I think वो जो जब मुझे अपनी like marital life में stress from different shapes and form, and I don't want to go into the nitty gritty. जब होना शुरू हुआ ना तो मैंने सबसे पहले अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, you know. सिर्फ पूरा फोकस काम पे होता था, काम घर बच्चे, हस्बैंड, एंड आई थिंक फॉर मेनी इयर्स मैंने अपना उस तरीके से सही से ख्याल नहीं रखा, खाने का ख्याल नहीं, जिम अगर जा रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस इतने हो जाते हैं कि हम सही से उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते. सो इंटरनली मेरी हेल्थ जो है ना डिटीरियोरेट होनी शुरू हो गई. So I think that itself is you know, I feel like very blessed that I was able to recognize, acknowledge, accept, and let go. और उसके बाद, you know, this whole new chapter has begun. Alhamdulillah. I saw that your message on Facebook that I can't believe how my life is changing the more I believe and let go. Let Yes. go का जो है ये बड़ा मुश्किल काम है. लोग अगर ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर इसकी आदत बना लें तो अपनी जिंदगी और दूसरों के लिए कितनी आसान बना सकते हैं. I think देखें, I'm not that religious per se, लेकिन जो मुझे अपने अब्बू से टीचिंग मिली और थोड़ा सा जो मुझे पता है, you know, religion के बारे में, I think all religions boil down to that kind of concept. उसमें ये होता है कि दुआ के देखें ना, जब हम दुआ करते हैं, दुआ आप अपनी नीयत रखें, ठीक है, आप इंटेंशन अपनी रखें वहाँ पे, लेकिन उससे ये ना एसोसिएट कर लें कि भी अगर हम अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह जी हमें आप ना एक काली गाड़ी दे दें, तो ये मत रखें, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए गोल्डन कार रखी हो कहीं पे. सो डोंट अटैच कि जो आप चाह रहे हैं, यू नो. आई थिंक जैसा मेरी लाइफ शीट में मुझे ये पता था कि नहीं है, लेकिन मैं रातों में भी अल्लाह ताला से दुआएं कई दफ़ा मांगती थी, चलते फिरते, यू नो, कि मुझे रास्ता दिखाएं. मैं स्टक हूँ इस रिलेशनशिप में, मुझे समझ नहीं आती कि वेयर इज़ द वे आउट, मेरे इख्तियार में नहीं है. एंड आई थिंक वो जो एक्सीडेंट हुआ ना मेरा, वो एक अल्लाह ताला ने वो एक दरवाजा खोला, या वो एक अवेकनिंग, या वो एक जरिया चीज बनाई, यू नो. उसमें उसको मैं ऑपोजिट भी ले सकती थी, या अपनी इवन डिवोर्स को भी ऑपोजिट ले सकती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया. ऑफ कोर्स, यू नो, आई हैव मोर फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज नाउ, जब पहले थी, ठीक है. तो आई थिंक लेट गो बहुत है इम्पोर्टेंट, कि हम सोचें कि हमें क्या चाहिए, एंड देन लेट गो ऑफ the control, let go of the control, कि यही चाहिए या यही करना है या ऐसे ही होना चाहिए, you know. बिल्कुल बिल्कुल, कितना सही बात की आपने, कितना बड़ा मैसेज है ये. और दुआ इज अ पावर, दैट्स ट्रू, कि अल्लाह ताला ने अगर जैसे और हार्डशिप, जब भी कोई हार्डशिप्स आती हैं, इन्ना मअल उस्रि युस्रा फइन्ना मअल उस्रि युस्रा, तो उसके बाद आसानी होती है और अल्लाह ताला दरवाजे खोलते हैं. बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने. The more everything falls in place, universe shows me clues along the way that everything's gonna be all right in days when things don't go my way. ये वाली बात जो हार्डशिप्स आई आपके लिए. जी 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 जी, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो है अपने जो कोई जॉब नहीं छोड़ रहे होते, या जो रिलेशनशिप है वो नहीं छोड़ रहे होते, डर होता है कि अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस. वो वाली बात है इसमें जो आपने लिखी है. बिल्कुल, लेकिन अगर हम फेथ, यू नो, जब ये मैं 3 साल जो मेरे गुजरे हैं ना, लास्ट 3 years, आई थिंक माई बिगेस्ट, आई वुड से कि मेरे बिगेस्ट जो मेरे साथ एक मेरे टूल बॉक्स में जो चीजें थी ना, वो था मेरा फेथ एंड होप, कि अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है, या यूनिवर्स पे. कुछ लोग जिस आई से यूनिवर्स इन अ वे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन बिलीवर्स भी हैं, ठीक है, तो मैसेज सबके लिए सेम है कि अल्लाह ताला पे अगर इंसान छोड़ देना कि अल्लाह ताला ने ही सारे काम आपके लिए करने हैं, या जो भी हो रहा है उनको भी एक्सेप्ट करो, और उनके लिए भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि अगर बुरा भी हुआ है ना, डोंट थिंक इट कि मेरे साथ ऐसा क्यों, डोंट बिकम अ विक्टिम, से कि पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या सोच के रखा होगा, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि ये दो चीजें आपने रखी अपने स्ट्रॉन्ग, उसको आपका बिलीव था और उम्मीद थी, उम्मीद पे दुनिया कायम है. You know, because अभी भी ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती कि the struggle, I think जैसा आप कहती हैं यही जिंदगी का नाम है, you know, I think those are very sweet words, कि struggle, hardship, even जब आपके पास अच्छी चीजें आती हैं, सक्सेस आती है, you know, हम सबको नवाजते अल्लाह ताला सेम, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते कि उसके पास ज्यादा है या मेरे पास कम है. हर इंसान को वो सारी चीजें मिलती हैं, इट्स जस्ट आवर
the way we look at it. और टाइम होता है, हाँ, और टाइम होता है, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल टाइम जब आता है। अच्छा, कैन बिलीव हाउ मच आई हैव चेंज्ड नॉट ओनली फिजिकली बट इमोशनली, पर्सनली एंड मेंटली। जी। तो क्या-क्या चेंजेस जो हैं आप महसूस करती हैं इन सबसे? वही एक तो आपकी जो थॉट्स हैं, वही जो है कहते हैं कि मुस्बत सोच जो है, वो इंसान के अंदर जो है वो इमोशनली, पर्सनली, फिज़िकली जो है सब पे जो है वो इम्पैक्ट करती है। जी। तो नौशीन देखिए, मैं तो इन अपनी लाइफ शिफ्ट से पिछले 2.5-3 साल से गुजर रही थी, ठीक है? लेकिन जब पेंडेमिक हुआ ना, तो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली स्टार्टेड रीचिंग आउट कि एक चेंज, यू नो, आई थिंक एज ह्यूमंस हम लोग बहुत डरते हैं चेंज से। तो राइट। एंड आई थिंक अब एवरीबडी कुड अग्री टू इट कि वो चेंज जो भी आया, यू नो, कुदरत की तरफ से, वो हमारे इख्तियार में नहीं था। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं या जॉब लूज में, लेकिन मेजॉरिटी जब मैं लोगों से बात करती हूँ या सुनती हूँ ना, तो इट इम्पैक्टेड अस। एक्चुअली इसने हमें एम्पावर किया है, इस चेंज ने, पेंडेमिक ने, कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, या हम अब जब वापस अपनी लाइफ में जाएंगे फुल फ्लैज, तो उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर सकेंगे, you know what I mean? कुछ चीज़ों को। बिल्कुल, मेरे ख्याल में यही रीज़न थी, अल्लाह ताला ने हमारी आँखें खोलनी थी। बिल्कुल। और सही, और हम लोग जो कई चीज़ें हम लोग जो मिस कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, वो हमने उसको शामिल किया है। हाँ जी। हमने टाइम निकाला नहीं है, बल्कि निकल आया खुद ब खुद पेंडेमिक की वजह से। हाँ जी। अदरवाइज़ तो हम लोग नहीं निकालते इन सब के, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए। हाँ अभी जी। हम मेरे एक क्लाइंट हैं, लैंडस्केपिंग का उनका बिज़नेस है। कहते हैं मेरा 11-12 साल में कभी इतना मुझे बिज़नेस नहीं मिला जितना बिज़नेस इन दिनों में, विदिन जो ये 6 मंथ्स पेंडेमिक के थे उसमें मिला है। तो मैंने सोचा कि क्या रीज़न हो सकती है, तो यही होगा कि पहले तो हमने अपना जो है फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड को इतना फ़ोकस नहीं किया होगा, और अब जो है हमें टाइम है कि लेट्स सी कि ये काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। Changing your lifestyle and shifting your energy is not a sprint but a marathon. तो Yes. मैराथन में आप शामिल हैं। I would say, अच्छा नौशीन, because you know, आपके इस एपिसोड में हम लोग थोड़ा सा ये भी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑन माय पर्सनल लाइफ। जब मैं हांगकांग से यहाँ पे आई ना, so I was a city girl. I'm always, but I do appreciate अब जो है मैं suburbs और वो जो slowness of life, and I think जैसे जैसे हम age करते हैं, you know, I will be 38 इंशाल्लाह in December, so हम लोग थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है? तो उस वक्त मैंने अपने आप को फुली चेंज करने की कोशिश की उस मैरिज में। फुली ट्रेडिशनल हो गई, यू नो, दिन त्योहार या जो भी रिवायतें होती हैं जो मुझे नहीं भी पता थी, यू नो, सो मेनी थिंग्स वर फॉरेन टू मी बिकॉज मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली से या यू नो कल्चर से आ रही थी। सो टू गिव के शायद इस तरीके से यू नो रिलेशनशिप वर्क हो जाए या इस तरीके से मेरे हस्बैंड हैप्पी हो जाएं, यू नो। तो जो मेरा जो माइंड सेट है ना, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द नगेट या एक मैसेज या एक मोरल ऑफ दिस एपिसोड वुड बी कि जो जहाँ पे भी है ना, एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके कॉलीग हो, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आई थिंक मेरी गलती ये थी all along कि मैं अपने आप को चेंज कर रही थी टू फिट इन इनटू दैट कल्चर या इनटू दैट काइंड ऑफ के शायद इस तरीके से यू नो एज अ वाइफ आई विल बी डूइंग बेटर। लेकिन अब मैंने क्या किया कि आई एम हु आई एम, ठीक है, I'm just accepting life as it is, and I think that is a major revelation in my life कि उसकी वजह से चीज़ें मुझे लगता है कि आसानी से everything is falling in place जब आप कंट्रोल करते हैं ना, जैसा गोइंग बैक टू कंट्रोल कि हमें आज जिस हम मंडे है, हमने मंडे को आज यही करना है, करें जरूर, इंटेंशन रखें, लेकिन अगर कभी आप साइड ट्रैक हो जाते हैं ना, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, बी हैप्पी कि कोई बात नहीं है, नो इट्स ओके, टेक अ ब्रेक। अपने गोल्स को जो है बहुत ज्यादा अपने कंट्रोल में रखें जितने हो सकते हैं, कंट्रोल, हाँ, उनके ऊपर इंटेंशन रखें लेकिन उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल ना करें, सर पे ना सवार कर लें। यस, जैसा फ्लावर होता है उसको यू नो लेट इट ब्लूम, लेट इट जस्ट ब्लूम, एंड नॉट कि उसको कंट्रोल करें कि अभी से ऐसे होना चाहिए या इतनी पत्तियां ही निकलनी चाहिए उसकी, यू नो, डोंट डू दैट, वल्लाह की इख्तियार में। कुछ पर्सनालिटीज होती है फायजा, कुछ होता है ऐसा कि वो अंदर से वो उनका वो उन्हें फील हो रहा होता है कि ये होना चाहिए। वो मैं हूं ना,
कंट्रोल ऐसे ही होना चाहिए. So मुझे अगर मैं लर्न कर सकती हूँ ना to let go of that control. And मेरे एक्स हस्बैंड हमेशा ये कहते थे और अभी भी कहते हैं we work well as co-parents. और वो रिस्पेक्ट और वो जो है एक चीज वो देखें उस चीज को जो आप देखें owning your life जो आपकी जिंदगी में रहा है ना that is another major thing कि उसको हम एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ अगर we're not together as husband and wife but we are together as parents of our children. तो वो चीज तो कभी निकल नहीं सकती है राइट. वो मुझे हमेशा कहते हैं कि you are always in a like now I'm shifting, I'm like I don't want that control of that life के जिसमें business का भी था. I'm still और मैंने पिछले 2 साल में जो business का भी control छोड़ा है ना नौशीन, लास्ट ईयर तो मेरा माइंडसेट ही नहीं था बिजनेस की तरफ. जो भी काम आ रहा था वो रेफरल्स और इस साल भी सारा रेफरल बेस सारा काम आया है. एक भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जहाँ पे मैंने किसी को अप्रोच किया हो कि मेरे से काम करें. एवरीथिंग इज फ्लोइंग इन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से जब आप वो लेट गो ऑफ कंट्रोल करते हैं. कंट्रोल उसके अलावा ये भी तो है कि आपका अपना पैशंस है, आपका खुद अपना इंटरेस्ट है कि लोगों के लिए जो है यू वांट टू डू समथिंग. तो एक रीजन तो ये भी है. और दूसरे एक और क्वेश्चन मुझे फायजा आपसे पूछना है कि आपने चेंज की बात की है कि जैसे फ्लेक्सिबल हो के आपने दिखाया अपने जो मैरिज रिलेशन जो आपकी शादी का अरसा था, तो आपको लगता है आपके हस्बैंड ने भी आपका इसी तरीके से कोऑपरेट किया था उसमें या नहीं? उनका भी इतना ही शेयर था? I would say अब देखिए मैं उनके दिमाग में जाके तो नहीं मुझे पता कि वो क्या फील करते थे. आपको क्या फील होता था? I think मैं जो हूँ I'm the oldest, ठीक है. फिर मेरे 2 बहन भाई छोटे हैं. तो वो बचपन से आई थिंक ये था कि तुम ख्याल करो तुम करो तो वो तुम वाला जो था ना मेरे अंदर कि हाँ मैं ही कर लेती हूँ कोई बात नहीं. वो मैंने कभी उनसे मांगा नहीं कुछ वापस. जितना दे दिया वो ठीक था. लेकिन कई दफा होता है कि आई थिंक द एप्रिसिएशन जो जहाँ भी मुझे फील हुआ ना आई थिंक द एप्रिसिएशन फ्रॉम हिज एंड वाज नॉट देयर. ठीक है. He was very comfortable कि जो हो रहा है जैसे हो रहा है ये खुद ही कर लेती है सब कुछ. बिजनेस भी सही से मैनेज कर रही है घर भी सही से मैनेज कर रही है. तो आई थिंक वहां पे मैं बर्न आउट हुई कि I'm giving I'm a human, I need something back too, especially as a wife. अगर हम अपने culturally wise देखा जाए तो I think and I don't go like कि wife या लड़का या लड़की का ऊपर. I think it should be balanced. So ये वाली बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है. आई होप कि हमारे जो कपल्स हैं वो ये बात सुन रहे हों और वो अपनी जिंदगी में चेंज लेकर आए. हम लोग करते रहे इससे पहले भी हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस है या डिफरेंट अपने रिलेशनशिप की बात की है तो उसमें हम लोग एनफोर्स कर रहे हैं. हमारे काउंसलर्स भी जो आते हैं कि अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाना है और उसमें से एक टिप आपने फायजा यही दी है जो आपने बताया. जी तो आप बैलेंस रखें, दूसरे का ख्याल रखें. ये ना हो कि दूसरे के ऊपर ज्यादा बर्डन हो. वो कह नहीं रहा है. कई मतलब बहुत दफा ऐसा होता है कि आपका पार्टनर जो है वो कह नहीं रहा होता लेकिन फील कर रहा होता है. And I think ये सिर्फ and I strongly dislike divorce. I'm very old school. 2 चीजें जो है ना I'm strongly against और हमेशा रही हूँ. लेकिन कई दफा होता है कि it's not in your control. Divorce and abortion. I'm totally against that. एक शादी होती है एक relation. That kind of mindset हमेशा रहा है मेरा. तो I'm not I don't encourage. I go like लेकिन वो balance जो है ना कई दफा लड़के पे भी ज्यादा burden हो सकता है. कि वाइफ रियलाइज नहीं करती उसकी एफर्ट्स या उसके वो काम पे जा रहे. सो आई थिंक बैलेंस जो है ना अप्रिसिएशन. आई थिंक किसी भी रिलेशनशिप में अगर वो फ्रेंडशिप में भी अप्रिसिएशन नहीं होगा ना एक ही फ्रेंड करेगा वही हर वक्त इनवाइट कर रहा है या वही हर वक्त एंटरटेन कर रहा है दूसरा फ्रेंड उसको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो आई थिंक दैट विल स्नैप आउट. सो आई थिंक अप्रिसिएशन यस. अच्छा मैं कहती हूँ कि आर्टिकल जो मैं पढ़ी थी उसमें लिखा है उन्होंने योर हेल्थ ट्रूली डज बिगिन इन योर माइंड. If we realize how much power our thoughts have over our circumstances, we could guard our thoughts and keep them positive as our top priority. And you're always very positive person, mashallah, Faiza. जी, I believe हाँ कि आप जो प्रोजेक्ट करते हैं लाइफ को लाइफ उसी तरीके से वापस आती है.
तो मुझे तो मैं अपने अब्बू से भी कह रही थी पिछले वीक कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा वापस जाके करेक्ट, क्योंकि a lot of times I hear people कि वो टाइम होता तो हम ऐसे कर लेते। जो भी हुआ है ना, वो आपने अपने हिसाब से बेस्ट ही किया होगा, यू नो। कोई भी इंसान सही, ये चाहे ब्लेम हम बेस्ट ना करें, हाँ, है ना? तो वो दैट्स व्हाट आई फील लाइक कि एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई स्टे हैप्पी कि हाँ, जो है उसको भी एक्सेप्ट करके उसका भी शुक्रगुजार करो, और अपनी थॉट से आप फ्यूचर को देखें ना कि आप क्या कुछ और अवेल कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, और जो आपके पास है इन दिस मोमेंट, यू नो। राइट, जो गुज़र गया, आगे का देखना कि आगे क्या हमारे लिए है। और आगे कोई की उम्मीद और आज की इंटेंशन और आज का राइट माइंडसेट और शुक्रगुजारी। माइंडसेट का आप जो है वो कर रही हैं, मेरे ख्याल में आपका उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो माइंडसेट। ये जो पेंडेमिक का हुआ ना, तो आई वाज डूइंग थिंग्स फॉर माय सेल्फ, क्योंकि मुझे ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह, नॉक ऑन द वर्ड, मैंने जो भी लाइफ के स्ट्रेसेस रहे ना नौशीन, कभी कोई डिप्रेशन एंजाइटी मेडिसिन नहीं लिया, यू नो। इवन देयर वाज अ टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी एंड जब मैं यहाँ पे शुरू में आई ना, सो इट वाज अ बिग, वहाँ पे सिटी लाइफ छोड़ के आप एकदम से यहाँ जो आप होम स्टक हो जो, और आप फिर 24/7 यू नो काम भी कर रहे हैं, घर की सफाइयाँ भी कर रहे हैं, सो फॉर मी इट वाज टू मच। तो उस वक्त मैं हाँ, डिप्रेस्ड हुई थी। उस वक्त मेरे एक्स हस्बैंड ने भी कहा था कि तुम ना, ये शायद तुम्हें डिप्रेशन होता है, और अब्बू ने मेरे कहा, क्योंकि अब्बू इज अ डॉक्टर, यू नो, अब्बू ने कहा कि नहीं बेटा, तुम, बिकॉज वहां से तुम्हारा लाइफ चेंज हुआ है, तो इसलिए तुम्हें ये फील होता है, राइट। तो अब ये जब पेंडेमिक हुआ है, तो मैं बहुत, ये अवेयरनेस जो है ना, वो ये है कि लोग अपने सिर्फ अपने जहन से अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करके, जो आपके पास है उसकी शुक्रगुजारी करके, यू कैन ऑल्सो अट्रैक्ट मोर अबंडेंस। के आपकी होता क्या है ना कि अगर जैसा लोगों के मैंने बिजनेसेस में सुना है, आज अगर एक महीना खराब गया ना, तो वो कहेंगे ओह बिजनेस बहुत ही खराब है, हमें तो हमेशा स्ट्रगल मिलती है। वो वाला भूल जाते हैं जब अल्लाह ताला ने उनको नवाजा होता है या आगे भी नवाजना होता है, तो वो चीज आपसे वो भी छिन जाती है जो दी होती है, यू नो। ये तो हमारे दीन में भी है। फायजा ये बात बिल्कुल सही की है कि लोग इस तरह, अच्छा पूछो कि कैसा चल रहा है, क्या है, ओ आजकल तो बहुत हालात खराब है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, जबकि आप यकीन करें, हम हो सकता है कि हम लोगों से ज्यादा ही अर्निंग हो, जी, लेकिन एक माइंड उन्होंने बनाया होता है कि जवाब देना बस इसी तरीके से, दुखी होके तो कि नहीं अच्छा गुजारा नहीं हो रहा है। और फिर कई दफा बिजनेसेस क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना, उसमें से देखें, हमारे जैसा ज़कात का या चैरिटी का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें जो बेसिक्स है ना, जो हमारे रिलीजन में, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट कल्चर बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कल्चर, लेकिन आई एम अ बिग फैन ऑफ रिलीजन per se। अल्हम्दुलिल्लाह। जो रिलीजन में है ना, वो करें, शुक्रगुजारी करें, चैरिटी दें, यू नो, दूसरों का ख्याल करें, और हमेशा उम्मीद करें कि अच्छा, आज अच्छा है ना, तो कल और अच्छा होगा। और वो चीजें फिर, आई मीन, माय लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि वो अच्छे से अच्छा होता जाता है। या फिर आप ये, अगर जैसा मैं देखूं, मैं कहूँ कि ओ मैंने डाउन साइज किया है, मेरा घर यू नो छूट गया, या मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा आ गया है, या वो जो जो भी था, लाइक यू कैन ईदर रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज गॉन या व्हाट इज टेकन, या जो गलत, जो नहीं सही हुआ, या फिर आप ये कह सकते हैं उसके उसके कंपैरिजन में आपको क्या क्या चीजें मिली हैं, यू नो। मेरी हेल्थ, ठीक है, फ्रेंड्स, एंड ये जो इवन ये अवेयरनेस जो मैं दे रही हूँ, आई थिंक आई से थैंक यू फॉर दिस, कि लोग मुझे रीच आउट करते हैं, या लोग, आई थिंक हम सब एक जैसे होते हैं, आई एम नॉट बिगर देन एनीबडी एल्स, लेकिन अगर वो मेरी किसी एक बात से भी किसी का हेल्प हो रहा है, आई थिंक इटसेल्फ इज अ सदका जारिया, इजंट इट? बिल्कुल, बिल्कुल, सदका जारिया है, एग्ज़ैक्टली यही है, यही थॉट्स, our thoughts drive and create emotion. Emotions is what causes us to make decision. Those decisions turn into our reality. Yes, Specific thoughts turn on different emotions, and different emotions produce different outcomes. yes, That is the reason. हाँ, absolutely, absolutely, I agree 100%. तो हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम आपके साथ दोबारा लेकर आएँगे। Faiza, thank you so much for joining us at Lifestyle TV channel today. It was a wonderful talk, wonderful message from you, and I'm looking forward again to talk about the, like I was telling about the market, कि आजकल जो है सेलिंग और बाइंग बहुत कुछ और, इस पेंडेमिक में जो सबसे ज्यादा जो है वो इसका रियल एस्टेट का, हाउसेस का जो है बिजनेस ग्रो होता हुआ नजर आया है। इसके बारे में आप जो है वो ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा से हम लोग मुलाकात करेंगे। और अगर आपका कोई मैसेज है अपने नाजरीन के लिए हमारे।
मैं सिर्फ यही कहूँगी सबसे जो भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द एंड एंड आई वुड से कि अगर wherever you are in life, उसको एक्सेप्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें, give thanks and be who you are. You know, I think that is itself is the biggest revelation of humankind कि हम जो हैं अपने आप को एक्सेप्ट करें and then give out to the people. जो भी आप जिस भी फील्ड में, you know, I'm sure everybody does that. So बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि अगर आपका पैशन आपकी सिंसियर एफर्ट्स होंगी तो मनी ऑलवेज फॉलो यू, डोंट वरी yes, अबाउट don't मनी, follow money. या इट विल फॉलो यू। Money should be a part of life. It should not be the heart of life. The heart of life is, of course, you know, understanding who you are and accepting yourself and loving everybody around you, and that's it. True. Thank you so much again, Faiza. I will see you again, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, Aslam. Allah Hafiz. Allah.